Good morning, one and all. Let's start with CA Intermediate Group 1 Accounts. Talking first about the syllabus, this you need not write this, but just go through the syllabus. When we talk of Intermediate Group 1 Accounts, the syllabus consists of accounting for incomplete records, also known as single entry. This is the topic we are going to start after 3 days, a very hardcore basics of accounts topic. तो जितने स्टूडेंट्स का अकाउंट्स का बेसिक थोड़ा भी डावाडोल है, ये चैप्टर के बाद आपका वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज कैश फ्लो एनालिसिस. कैश फ्लो एनालिसिस अगर आप 11th और 12th में कर चुके हैं तो आपको 11th या 12th में सिर्फ एक इनडायरेक्ट मेथड था और बहुत छोटे लेवल पे था. यहाँ it's at a great level and both the methods are covered, that is direct method and indirect method. AS3 covers this. Next is hire purchase accounts. Hire purchase is when you buy an asset on installment basis. How to account for it, जिसको आप बहुत प्यार से रोज की लैंग्वेज में EMI पे जब हम एसेट खरीदते हैं तो क्या होता है, ये उसकी अकाउंटिंग है. नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट AS13. AS13. Well, there can be various kinds of investment in this world, but AS13 and this chapter deals with two kinds of investment, dividend bearing and interest bearing, that is shares and debentures में जब आप invest करते हो तो ये investor के point of view से. Next one is insurance claims. When you buy insurance policies, how do you claim when there is a damage? Again, we are dealing with two kinds of policy, loss of stock and loss of profit. I'll be briefing you when we start that chapter. Next one is very interesting one and one of the most difficult topics in intermediate group 1 accounts, that is branch accounts. Difficult because of the spread of the chapter. It covers 18 different kind of questions and 18 different kind of concepts, that is branch accounts. Next one is department accounts, another tough chapter along with branch accounts. तो अगर मैं intermediate group 1 की बात करता हूं तो department accounts and branch accounts happen to be the most technical and most tough chapters. Apart from it, company final accounts. Company final accounts is as per the format of Companies Act. How to prepare the P&L and balance sheet of companies, the vertical format. Bonus issue, when a company goes for a bonus issue, what are the law and regulations associated with it? Redemption of shares and debentures, majorly preference shares redemption and redemption of debentures. And lastly, most important, accounting standards. Well, accounting standards, they have divided into both the groups. There are certain set of accounting standards that they cover in group 1 and another set of accounting standards that they cover in group 2, but not to be missed because every attempt, I repeat, every attempt, minimum 16 marks is dedicated to accounting standard. 4 into 4. 4 मार्क के 4 क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. जिन लोगों ने वीपीए से नोट्स कलेक्ट कर लिए है, आपने इंडेक्स में पढ़ा होगा कि उसकी एक पूरी की पूरी किताब ही अलग दी हुई है आपको. तो जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चालू करेंगे उस टाइम पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक अलग से बुक मिलेगी. अभी आपको जो बुक मिली है उसमें ऊपर के 11 चैप्टर्स कवर्ड है, दैट इज अनसॉल्व्ड. Within 15 days you will get a solved book also, and accounting standard we solve last, that is after 3.5 months. That time you will be getting the book, right? Lastly, all of you should be registered, should be available, should be occupied, and most importantly all of you should have a fresh register with you. हमें सीए फाउंडेशन का रजिस्टर यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है क्योंकि उसमें 30-35 पन्ने बच गए थे. बराबर, आप सब एकदम रईस घरों से आते हो, आप सबका नेटवर्क मुझसे कम से कम 100 गुना ज्यादा है, राइट? तो प्लीज हैव अ न्यू रजिस्टर. और जिनको भी अगर लगता है कि रजिस्टर की कमी है, रजिस्टर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप आ जाइए वीपीए में, करेक्ट? मैं और आप मिलके साथ में पैसे का जुगाड़ करके आपके लिए रजिस्टर्स खरीदेंगे. तो a fresh register, a calculator, a pen, and most important, a fresh mind. So let's go for it. Let's start with a chapter which is easy but very scoring at intermediate level, that is profit prior to incorporation. अब जैसे ही मैंने ये कहा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मैं स्क्रीन पे देख सकता हूँ काफी बच्चों ने फटाफट अपने सामने वीपीए की किताब खोल ली, वहां इंडेक्स चेक कर रहे हैं, इंडेक्स में उनको चैप्टर नंबर 5 दिख रहा है और वो उस चैप्टर पे आ रहे हैं. बहुत अच्छी बात है, पर आके करोगे क्या? उस चैप्टर पे आके करोगे क्या? मुझे सुनना है ना, तो सीधा सुनो, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बता दूंगा कि आपको चैप्टर खोलना है. तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. नाउ if you can see the screen very clearly, can I get a thumbs up? Vidhi Jindal, can I get a thumbs up? Great.
मयूरा, इज द वॉइस ऑडिबल क्लियरली? ग्रेट। नाउ दोस्तों मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। अच्छा, पहली बात, जितने लोग एकदम टेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ा के बैठे हुए हैं कि जिंदगी का पहला दिन है, इंटरमीडिएट में हमारा क्या होगा, भगवान तू इस बार भी हमें संभाल लेगा कि नहीं संभाल लेगा, और जितने लोग ब्लड प्रेशर बढ़ा के बैठे हुए हैं, आपको ये बता दूं, फाउंडेशन में भी पहले दिन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, पर प्री रिजल्ट बैच में अगर आप आ रहे हो, ये बहुत बड़ा सबूत है कि आपका फाउंडेशन का पेपर अच्छा गया है, बराबर। तो पहले दिन का टेंशन और पैनिक मत रखो, मुझे समझेगा कि नहीं समझेगा, समझेगा कि नहीं समझेगा, शी लव्स मी नॉट, अरे शी लव्स यू रे, टेंशन मत ले। हेलो, इज दैट ओके? तो इतना टेंशन पालने का नहीं लाइफ में, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, और अगले 1.5 घंटे में आपको समझ जाएगा कि इंटरमीडिएट कोई एकदम से ऐसा हवा या भूत नहीं है, ये भी इक्वली इजी है अगर हम अच्छे से ध्यान देते हैं। प्लस मैं तो हूं ही आपके लिए, जिसको आप इतने साल से वैसे भी अकाउंट्स में झेल रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अब जितने लोग अलंकृत लैंग्वेज में अपने रजिस्टर में इसकी हेडिंग लिख रहे हैं, कृपया बंद करें और ध्यान दें। धन्यवाद। कुछ लोग को मैं देख पा रहा हूं जो ब्यूटिफिकेशन में लग गए स्केल पेंसिल के साथ। रिलैक्स। नाउ लिसन दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये शब्द का मतलब क्या है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अभी तक आपको हिंट समझ गया होगा दैट वी आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट कंपनीज, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन कंपनी का होता है, राइट? प्रोप्राइटर कंसर्न का इनकॉर्पोरेशन नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म का इनकॉर्पोरेशन नहीं होता। लीगली अगर हम बात करें तो इनकॉर्पोरेशन हैपेंस ऑफ कंपनीज। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मतलब शब्द ही गलत लग रहा है। इनकॉर्पोरेशन होने के पहले का प्रॉफिट? अरे अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई है, मतलब चालू ही नहीं हुई है, कंपनी चालू ही नहीं हुई है, तो उसके पहले का प्रॉफिट? अक्सर मेरा कॉमन सेंस ये बोलता है कि पहले कंपनी चालू होगी, चालू होने के बाद कंपनी बिजनेस करेगी, और बिजनेस करेगी तब तो प्रॉफिट कमाएगी। तो लॉजिकली तो मेरे हिसाब से वर्ड क्या होना चाहिए? वर्ड तो ये होना चाहिए, प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मतलब अगर मैं टाइमलाइन पे बात करूं, स्क्रीन पे देखिए, अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो दोस्तों, अगर बोर्ड पे देखिए, इफ दिस इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर कंपनी लीगली इस दिन इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो फिर प्रॉफिट तो यहां होना चाहिए ना, इनकॉर्पोरेशन के बाद होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन के पहले, बोर्ड पे देखिए टाइमलाइन पे, इनकॉर्पोरेशन के पहले प्रॉफिट कैसे हो सकता है? अरे कंपनी बनी नहीं है तो प्रॉफिट कहां से होगा यार? तो हाउ इज दिस वर्ड बीइंग यूज्ड? कैन यू गेस? कम ऑन, जागो सब लोग, कैन यू गेस दिस? इनकॉर्पोरेशन के पहले मैं कमाऊं कैसे? क्योंकि लीगली अभी कंपनीज एक्ट आपको सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में है, लॉ में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं कि जब भी मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, मैं आपको डिक्टेट भी करवाऊंगा, प्लीज बेटा पहले कंसेप्ट को सुनिए। बिकॉज हमेशा हम जो भी कंसेप्ट चालू करते हैं, सबसे पहले हम कौन से कंसेप्ट से चालू करते हैं? द वाई फैक्टर, द क्यू फैक्टर, कि हम ये चैप्टर समझ क्यों रहे हैं, या हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो वाई आर वी स्टडिंग दिस चैप्टर? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, जितना मेरा लॉ का नॉलेज कहता है, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट इन लॉ, बट जितना मेरा लॉ का नॉलेज कहता है, जब भी बेटा एक कंपनी चालू होती है ना, जब भी एक कंपनी चालू होती है, कंपनी को 2 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सीए फाउंडेशन में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इस प्रोप्राइटर कंसर्न, आप वहां से बोल नहीं सकते पक्का है, पर आप अपनी गर्दन हिला के मुझे बता सकते हैं। मैं आपको बताता हूं गर्दन कैसे हिलाते हैं। देखिए, ऊपर से नीचे हिलाएंगे ना तो इसे हाँ कहते हैं, लेफ्ट से राइट हिलाएंगे तो इसे ना कहते हैं। काफी लोगों को कंफ्यूजन है, वो 360 डिग्री घुमाते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें, करेक्ट? तो मुझे एक बात बताइए, इस प्रोप्राइटर कंसर्न अ सेपरेट लीगल एंटिटी? गर्दन हिलाने का मौका मिल रहा है आपको। इस प्रोप्राइटर कंसर्न अ सेपरेट लीगल एंटिटी? यस और नो? यस, इज इट अ सेपरेट लीगल एंटिटी? मतलब विपुल मिष्ठान भंडार अगर एक प्रोप्राइटर कंसर्न है, और विपुल वो रहा एक प्रोप्राइटर है, तो विपुल मिष्ठान भंडार का एक अलग लीगल अस्तित्व है। मेरे दुकान की मिठाई खा के आप मर मरा गए या फूड पॉइजनिंग हो गया आपको, तो आप विपुल मिष्ठान भंडार पे केस फाइल कर सकते हैं।
कैन यू फाइल द केस अगेंस्ट विपुल मिष्ठान भंडार? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। अभी आप वीपीए में पढ़ रहे हैं, वीपीए इज अ पार्टनरशिप फर्म। सुबह सुबह 8 बजे रूपम सर ने आपको उठा दिया, आपका दिमाग खराब हो गया, आप वीपीए के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं क्या? The answer is no, because VPA as a partnership firm is not a separate legal entity. प्रोप्राइटर कंसर्न इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आप में से जिन बच्चों को अकाउंट्स में कंफ्यूज हो रहा है कि सर आपने तो हमें एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ाया था, ये देखिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और लीगल एंटिटी कंसेप्ट दोनों में बहुत फर्क है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब बिजनेस एक अलग इंसान है और बिजनेस के ओनर अलग इंसान है। तो विपुल मिष्ठान भंडार प्रोप्राइटर कंसर्न एक अलग इंसान है, विपुल वोरा एक अलग इंसान है। वीपीए पार्टनरशिप फर्म एक अलग इंसान है, विपुल वोरा रूपम बर्डिया एक अलग इंसान है। रिलायंस एक अलग इंसान है, मुकेश अंबानी एक अलग इंसान है। एज पर विच कंसेप्ट? एज पर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज एज पर अकाउंट्स। तो बिजनेस अलग, उसका ओनर अलग। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन था, मैं इस कंसेप्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इस कंसेप्ट की बात कर रहा हूं जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, लीगल एंटिटी कंसेप्ट। लीगल एंटिटी कंसेप्ट मतलब एज पर लॉ, लीगल एज पर लॉ क्या उसका अस्तित्व अलग है? द आंसर इज नो। विपुल मिष्ठान भंडार एक प्रोप्राइटर कंसर्न है, लॉ की नजरों में वो एक इंसान है ही नहीं। वीपीए पार्टनरशिप फर्म लॉ की नजरों में इंसान है ही नहीं। अगर आपको केस फाइल करना है तो आपको विपुल वोरा के केस फाइल करना पड़ेगा, या वीपीए के अगेंस्ट केस फाइल करना है तो आपको रूपम बर्डिया और विपुल वोरा के अगेंस्ट केस फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ की नजरों में वीपीए जब एक इंसान ही नहीं है तो आप वीपीए के अगेंस्ट केस ही फाइल नहीं कर सकते। कैन यू बाय लैंड इन द नेम ऑफ वीपीए? नो। कैन यू बाय लैंड इन द नेम ऑफ विपुल मिष्ठान भंडार? नो। बट कैन यू बाय लैंड इन द नेम ऑफ रिलायंस? यस, बिकॉज रिलायंस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब लॉ की नजरों में वो एक अलग इंसान है, और लॉ की नजरों में अगर वो एक अलग इंसान है तो लॉ की नजरों में उसका एक डेट ऑफ बर्थ भी तो होगा ना, क्योंकि जो इंसान लीगली है उसका जन्म भी तो हुआ होगा ना। वो जन्म को कहते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जब भी एक कंपनी बनती है, कंपनी को दो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब भी एक कंपनी चालू होती है, ये आप लॉ में पढ़ेंगे, आपको लॉ की फैकल्टी ये पढ़ाएंगे कि व्हेनेवर अ कंपनी स्टार्ट्स, कंपनी इज अ लीगल पर्सन, एंड आरओसी जो होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी आपको दो सर्टिफिकेट्स इशू करता है। वो दो सर्टिफिकेट्स का नाम है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। करेक्ट? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब लॉ की नजरों में, गवर्नमेंट की नजरों में इस दिन कंपनी का जन्म हुआ। देखिए मैं आपको कोई लॉ नहीं पढ़ा रहा, पर जब तक आपको पीछे का बैकग्राउंड ना समझे तब तक आप अकाउंट्स उसके सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए 10 मिनट आपको इसके पीछे का लॉ समझना बहुत जरूरी है। तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल entity. Because it is a legal entity, it is formed under law. It is formed under Companies Act 1956 अगर पहले का था तो, और अभी नई कंपनी है तो it will be formed under Companies Act 2013. और कंपनी जब भी चालू होती है एक लीगल एंटिटी बनती है, और लीगल एंटिटी को दो डेट्स मिलती है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नाम से ही आपको समझ गया होगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब लॉ की नजरों में इस दिन कंपनी का जन्म हुआ है, लॉ की नजरों में इस दिन कंपनी का जन्म हुआ है। एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, नाम ही काफी है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब इस दिन से आप अपना बिजनेस कर सकते हो। करेक्ट? तो बेटा ये दो सर्टिफिकेट कंपनी को मिलते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे देखिए, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये देखिए अगर मैं ये टाइमलाइन की बात करता हूं, करेक्ट, अगर मैं टाइमलाइन की बात करता हूं, प्लीज समझिए, इफ दिस इज माय डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस दिन कंपनी का जन्म हुआ, मान के चलिए आज 4 जनवरी 2021 को अगर कंपनी का जन्म हुआ है, तो आपको क्या लगता है, ये हुआ सर्टिफिकेट नंबर 1, बोर्ड पे देखिए, ये हुआ आपका सर्टिफिकेट नंबर 1, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी।
अगर ये आपका सर्टिफिकेट नंबर 1 है जो आपको 4 जनवरी को मिला है, यस, तो मुझे एक बात बताइए, जो दूसरा सर्टिफिकेट है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो कब होना चाहिए? उसकी डेट कौन सी होनी चाहिए? 4 जनवरी के पहले, 4 जनवरी के बाद, कौन सी डेट होनी चाहिए? 4 जनवरी। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको मैं अनम्यूट करता हूं, बताइए गाइस, कम ऑन। अगर 4 जनवरी, सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग जिंदा है, हाँ या ना? जिंदा है सब लोग? ये बात सुबह 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 बोल तो नहीं हो रहा है? नींद तो नहीं आ रही? मतलब जिस पिच पे मैं चिल्ला रहा हूं, नींद आने का सवाल थोड़ा कम ही है। तो 4 जनवरी को अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, 4 जनवरी को कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, मतलब कंपनी का जन्म लॉ के हिसाब से 4 जनवरी को हो रहा है, तो कंपनी धंधा कब चालू कर सकती है? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो डेट, पहला क्वेश्चन, क्या वो 4 जनवरी के पहले हो सकता है? कैन इट बी 2 जनवरी? कैन इट बी 1 जनवरी? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ये सेम डेट हो सकता है कि भाई 4 जनवरी को आपका जन्म हुआ, 4 जनवरी से ही आप धंधा चालू कर दो, ये पहला हो सकता है। या डेट ऑफ कमेंसमेंट उसके बाद हो सकता है, 8 जनवरी 18 जनवरी हो सकता है। बोलने का मतलब अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैन इट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? नो, नो। या तो दोनों की डेट सेम रहेगी 4 जनवरी, या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट 4 जनवरी के बाद रहेगी, क्योंकि कंपनी का जन्म होगा उसी के बाद तो वो धंधा कर पाएगा, या उस दिन से वो धंधा कर पाएगा। जन्म होने के पहले धंधा कैसे कर पाएगा? आर यू गेटिंग मी? ये हुआ द लीगल पॉइंट, दिस इज द लीगल पॉइंट। When this is the legal point, this is the legal entity, it is governed by law under the parliament, कंपनीज एक्ट 2013, और डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब ये सीधी सीधी बात हो गई, ये सीधी सीधी बात हो गई कि सर अगर मेरा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 4 जनवरी है तो मेरा डेट ऑफ कमेंसमेंट इसके बाद ही हो सकता है या वही दिन हो सकता है। इसका मतलब मैं धंधा उसी दिन चालू कर सकता हूं या उसके बाद चालू कर सकता हूं, तो प्रॉफिट तो मैं उसी के बाद ही कमा सकता हूं ना। जब मैं प्रॉफिट उसी के बाद कमा सकता हूं तो ये क्या मजाक चालू है कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन? कंपनी का जन्म ही नहीं हुआ है, कंपनी का लीगल अस्तित्व ही नहीं बना है, उसको सर्टिफिकेट ही नहीं मिला है, और उसके पहले आप प्रॉफिट कमा रहे हो। वर्ड आया कहां से? दिस शुड एक्साइट यू, बिकॉज जितने चैप्टर्स के नाम मैंने आपको गिनाए हैं, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाले हैं, आगे आर्टिकलशिप में एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आने वाले। अब मुद्दा ये आता है कि सर अब सस्पेंस खोलो ना सर, कैसे पॉसिबल है? चलो बताता हूं आपको। दोस्तों आज एक, मान के चलिए आज 4 जनवरी को, सिंस यू नो दैट वी आर इनटू एजुकेशन, नागपुर में मान के चलिए एक एकेडमी है जिसको अपना बिजनेस बेचने का है। नागपुर में एक एकेडमी है जिसको अपना बिजनेस बेचने का है, करेक्ट? ठीक है, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, कृपया ध्यान दें। नागपुर में एक एकेडमी है जिसको अपना बिजनेस बेचने का है, ठीक है। अब वो हमारे पास आते हैं कि वुड यू लाइक टू टेक ओवर अवर बिजनेस? अब इट मेक सेंस, इट डेफिनेटली मेक सेंस कि हम बिजनेस खरीदें, पर रूपम सर का ऐसा बोलना है कि विपुल सर अपन एक काम करो सर, वीपीए इज अ पार्टनरशिप फर्म, हमको पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस एक्वायर नहीं करना है। वीपीए इज, अब ढंग से सुनिए इसका लॉजिक, सर वीपीए इज अ पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म में हमें बिजनेस एक्वायर नहीं करना है, क्योंकि सर आपको पता है पार्टनरशिप फर्म हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर कल चल के कुछ ऊपर नीचे हो गया ना सर, तो अपना घर बार सब बिक जाएगा। मैं कहा सर बात तो सही है आपकी। सर आप बोले एक बात मान के चलिए, अगर कल चल के 10 करोड़ का क्लेम आ गया, मैंने कहा हाँ, तो सर 10 करोड़ में से 5 करोड़ विपुल सर आपको देने पड़ेंगे और 5 करोड़ मेरे को देने पड़ेंगे, तो अपना तो घर बार ही बिक जाएगा। मैं कहता हूं रूपम सर घर बार कहां से बिकेगा?
आपको 5 करोड़ देने, आप तो शंकर नगर में एक छोटा सा प्लॉट बेच के चुका दोगे, घर बार तो मेरा बिकेगा। तो बोलता है हाँ सर, मैं आप ही के लिए सोच रहा हूं कि एक काम करो सर, पार्टनरशिप फर्म में अपन एक्वायर नहीं करते, कल चल के कुछ भी लफड़े हुए तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कौन पालेगा? सर लेट्स ओपन, ढंग से सुनिएगा आप, सर लेट्स ओपन वीपीए एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। सर अपन एक कंपनी चालू करते हैं। सर आपको पता है कि कंपनी में सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी रहती है सर। मैंने कहा हाँ पता है सर, मैंने भी सीए किया है। बोलते ओके सर, मुझे पता नहीं था आपने भी सीए किया है, चलिए कोई बात नहीं। तो सर आपने भी सीए किया है तो आपको तो पता ही है कि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी है। मैं कहता हूं हाँ, तो सर अपन एक कंपनी बनाते हैं और जो एकेडमी बिकने के लिए आई है उस एकेडमी का नाम है ZPA एकेडमी। तो ZPA एकेडमी अगर बिकने के लिए आई है तो विपुल सर अपन ZPA एकेडमी को टेक ओवर तो करते हैं, पर सर अपन कंपनी बना के टेक ओवर करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में अपने को टेक ओवर नहीं करने का है क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी। चलो बात मान लिया, रूपम सर लॉजिकल बोल रहे हैं, मैंने बात मान लिया। अब आप तकलीफ समझिए, अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल लाइफ तकलीफ है दोस्तों, राइट? कैन आई हैव योर फ्रंट कैमरास ऑन गाइस? योर रिएक्शन स्पीक्स अ लॉट, राइट? लाइव क्लास हम अटेंड क्यों कर रहे हैं? रिकॉर्डेड का ऑप्शन तो कभी भी था, कल से भी हम लाइव क्लास बंद करके रिकॉर्डेड वर्जन पे जा सकते हैं, पर ये मजा नहीं आएगा फिर आपको, राइट? अब मुझे एक बात बताइए, ये प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन है, इसको समझिए बात को। ZPA नाम की एक एकेडमी है नागपुर में, नागपुर में एक ZPA नाम की एकेडमी है जिसको स्ट्रेस सेल करना है। स्ट्रेस सेल का मतलब होता है कुछ भी हो जाए हमको आज के आज बेचना है, हमको गरज है, हमको कोई भी रीजन से गरज है, पर हमको आज के आज बेचना है। अब बात को समझिए, ZPA एकेडमी को आज अपने आप को बेचना है, इन्होंने अपनी कीमत लगाई है 15 करोड़ रुपए। 15 करोड़ रुपए तो मेरे पास अवेलेबल है, मतलब ज्यादा बड़ी बात ही नहीं है। अगर मैं नीचे उतरूं तो कार की डिक्की में इतने पैसे पड़े हुए हैं, पर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर का बच्चा तो नहीं पढ़ रहा है ना यहाँ पे। बेटा ये सारे एग्जाम्पल काल्पनिक है, इसका असली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, बराबर? अब अगर मैं 15 करोड़ रुपए लेके तैयार बैठा हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं 15 करोड़ रुपए तैयार लेके बैठा हूं, ये ZPA एकेडमी है जिसको अपना बिजनेस बेचना भी है, हमारे पास पैसे भी है, पर रूपम सर कहां अड़ गए? सर अपन कंपनी बना के टेक ओवर करेंगे। अब आप तकलीफ समझिए, ये एकेडमी वाले को कल के कल यूएसए शिफ्ट करना है। क्यों करना है वो उसका प्रॉब्लम है, उसको यूएसए जाना है, उसको धंधा बेच के जाना है, उसको आज के आज पैसे चाहिए। आप प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन समझिए, जो बंदे को स्ट्रेस सेल करना है, उसका नाम ही स्ट्रेस सेल इसलिए कि आज जो पैसा मिले मिलके मेरे को मोकला हो जाना है। वो बंदे को 15 करोड़ आज के आज चाहिए, डील अच्छी है, उसका वैल्यूएशन 25 करोड़ है, 25 करोड़ की वैल्यूएशन की एकेडमी हमको 15 करोड़ में मिल रही है, इसी को तो स्ट्रेस सेल कहते हैं। जब किसी की गरज है उसको बेचना है। 15 करोड़ में डील बहुत अच्छी है, but the problem is that the purchaser should be VPA Education Private Limited, और ये कंपनी का अस्तित्व ही नहीं है। अरे रूपम सर ने आज तो बोला कि ये कंपनी खोलना है। अब कंपनी अगर खोलना है, राइट, कंपनी अगर खोलना है तो मैंने आज एक बोर्ड लगा दिया और कंपनी चालू होगी क्या? कैन कंपनी स्टार्ट लाइक दिस गाइस? कम ऑन, यस और नो? आज मैंने एक बोर्ड पे प्रिंट करवा दिया VP एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और मेरी कंपनी चालू हो गई। क्या करना पड़ेगा मुझे? काफी लोग ने कंपनीज एक्ट थोड़ा बहुत तो पढ़ के रखा हुआ है, पहले मुझे कंपनी को प्रमोट करना पड़ेगा। प्रमोट करना पड़ेगा तो इस प्रोसेस को समझिए, इस प्रोसेस को समझिए। पहले तो विपुल वोरा और रूपम बर्डिया को प्रमोटर बनना पड़ेगा कंपनी का, प्रमोटर बन के कंपनी को प्रमोट करना पड़ेगा, प्रमोट करके उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। जिन्होंने ये शब्द पहले सुने अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुने, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या बिजनेस करेगी, उसकी ऑफिस कहां रहेगी, उसके फिलहाल शेयर होल्डर्स क्या है, उसके धंधे क्या रहेंगे, किस मतलब एक पूरी कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो पहले मैं और रूपम सर कंपनी प्रमोट करेंगे। कंपनी प्रमोट करके सबसे पहले तो ये आपको मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चालू होगा। अरे हमने अभी सोचा है कि हमको ये नाम से कंपनी चालू करनी है, सबसे पहले तो ये चेक होगा कि ये नाम की कंपनी इंडिया में अवेलेबल है भी कि नहीं है।
आर यू गेटिंग इट? ये कोई आपके बच्चे का नामकरण नहीं है कि पड़ोस के सब बच्चों का नाम वो है और तुमने भी अपने बच्चों का नाम वो रख दिया, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, चलो अच्छी बात है। नाउ आपकी कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में किसी कंपनी का नाम नहीं है। तो पहले तो ये चेक करने को 1 दिन लग जाता है। आप प्रोसीजर समझिए। आज 4 जनवरी है, 4 जनवरी को वो एक एकेडमी आके तो बैठी हुई है कि आप हमारा धंधा आज खरीद लो। रूपम सर अड़ गए कि हमको कंपनी चालू करनी है। ये कंपनी का नाम अवेलेबल है कि नहीं ये पता करने को 1 दिन लगता है। चलो ये कंपनी का नाम अवेलेबल है, अब क्या होता है, आप कंपनी को प्रमोट करो। प्रमोट कैसे करो? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाओ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाओ और इसको भेजो आरओसी के पास। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कहां बैठा हुआ है? नागपुर में मेरे घर के बाजू में बैठा हुआ है क्या? नहीं। अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करता हूं तो आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कहां बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है बॉम्बे में और पूना में। तो मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, प्लीज इसके पीछे का लॉ समझिए तो अकाउंटिंग में फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। अब प्रॉब्लम क्या है, 1 दिन लग गया नाम सैंक्शन होने के लिए। अब मैं आरओसी के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल भी कर दूं और उसकी फीस भी भर दूं। तो ये इंडिया है दोस्तों। कंपनी को लीगली चालू होके सैंक्शन मिलने को कम से कम 7 दिन से 15 दिन लगेंगे। कम से कम बता रहा हूं मैं, 7 दिन से 15 दिन लगेंगे। तो अगर बेटा मैंने आज 4 तारीख को, अगर मैंने आज 4 तारीख को वॉर फुटिंग पे भी मेरा काम चालू किया ना, तो गिरी हुई हालत में 20 जनवरी के पहले तो मेरी कंपनी चालू ही नहीं होगी, उसका लीगल अस्तित्व ही नहीं बनेगा। और तकलीफ ये है कि ये 16 दिन तक वो ZPA एकेडमी वाला रुकने वाला है क्या? उसको क्या करने का था? स्ट्रेस सेल करने का था। 25 करोड़ का धंधा 15 करोड़ में बेचने जाने का है। अब ये तकलीफ में मैं क्या करूं, आप बताइए। मतलब एक तरफ खाई एक तरफ कुआं। मेरे को आज उसको खरीदने का भी है, मुझे आज के आज खरीदने का भी है, और मेरा पार्टनर बोलता है कि कंपनी भी बनाने का है। कंपनी बनने को 15 दिन लगेंगे और उसको आज ही बेच के अपना धंधा जाने का है। अब ये दोनों को मैं कैसे हैंडल करूं? उसका बिजनेस मैं छोड़ नहीं सकता टेक ओवर, और कंपनी मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरा पार्टनर उसके बिना मान नहीं रहा है। आर यू गेटिंग इट? मतलब ये सिचुएशन कैसी हो गई? निखिल सिंगाड़े, तेरी सिचुएशन लेता हूं। एक बार तूने शेयर किया था ना मुझसे सीए फाउंडेशन में, देखो बात कहां अटकती है मैं आपको बताता हूं। विधि सुन रही है तू? मोहम्मद जैद, यस। एलेक्स, यस। एग्जाम्पल सुनो, एकदम रियल लाइफ एजुकेशन एग्जाम्पल है। रेणुका डोंगरे, यू लुक रियली इंटरेस्टेड। सुन बेटा, एकदम मजेदार एग्जाम्पल है, राइट। बात ये ऐसी है, चलो एक काम करते हैं, एक बंदे को अनम्यूट करने के लिए बोलते हैं, वो हमें आंसर देगा। किसको बोलते हैं हम अनम्यूट करने को? निखिल सिंगाड़े, अनम्यूट कर बेटा अपने आप को। चलिए सिचुएशन का आंसर बता मेरे को निखिल। यस बोल। सुनाई नहीं दे रहा निखिल, यस बोल। ये बात निखिल, एक बात बता, यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नहीं, सही सही बता बेटा। मेरी क्लास में जिसने झूठ बोला है ना वो कभी पास नहीं हुआ है। सही है ना? हाँ है, मतलब चलो अच्छी बात है। नाउ निखिल एक बात बता, निखिल एक बात बता, तू सपोज एक एक नाम चूज कर तेरी गर्लफ्रेंड का। रश्मि। हाँ बेटा, इतने फास्ट, हाँ इतने फास्ट तूने गर्लफ्रेंड का नाम चुन लिया और बोलता गर्लफ्रेंड नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब निखिल, रश्मि तेरे को ये बोलती है कि शादी करना है तो आज के आज कर, 4 जनवरी को। समझ रहे हो ना? हाँ, रश्मि बोलती है कि शादी करना है तो आज के आज कर, नहीं तो मैं किसी और से शादी कर रही हूं। और तेरे को तेरे मम्मी पापा को कन्विंस करने को 15 दिन लगने वाले हैं। अब तू कन्विंस करने के लिए रुकेगा तो लड़की जाएंगी, और शादी करेगा तो माँ बाप जाएंगे। अब तू करेगा क्या? क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना? हाँ, अब बताओ। अच्छा, मेरा ही डायलॉग मेरे को ही चिपका रहा है, आंसर दे। आज आज शादी नहीं की तो लड़की पड़ोसी से शादी कर लेंगी, जिंदगी भर तुझे भाभी बना के रखना पड़ेगा उसको। माँ बाप को छोड़ देगा बेशरम इंसान। तो लड़की को छोड़ देगा, क्यों?
गाइस सिचुएशन समझ रहे हैं आप? सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, ना हम इसको छोड़ सकते हैं ना हम उसको छोड़ सकते हैं। वैसे ही यहाँ बिजनेस डील है, ना हम अच्छी बिजनेस डील को छोड़ सकते हैं और कंपनी बिना बनाए हम टेक ओवर नहीं कर सकते। दिस इज वेयर द प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कम्स इनटू पिक्चर। कि अगर हमें, अब अच्छे से सुनिएगा, अब चैप्टर का लॉजिक आ रहा है। अगर एक एग्जिस्टिंग बिजनेस हमें मिल रहा है जो हम टेक ओवर कर रहे हैं, करेक्ट, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को हमें टेक ओवर करना है, पर हमें उसे एक कंपनी बना के टेक ओवर करना है। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम यह है कि ये बिजनेस वाला रुकेगा नहीं और कंपनी बनाने को 15 दिन लगेंगे। तो एक कंपनीज एक्ट ने हमें एक प्रोविजन दिया हुआ है कि चलिए बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। निखिल तू क्या आंसर दे सकता था पता है क्या? तू ये बोल सकता था कि सर मैं प्रियंका को, क्या नाम बताया था तूने? रश्मि। अच्छा हाँ, निखिल तू ये आंसर दे सकता था कि सर मैं रश्मि से आज सगाई कर लूंगा और 15 दिन बाद मम्मी पापा को मना के शादी करूंगा। दिस कुड हैव बीन द ऑप्शन। ऐसा कभी एक्सट्रीम नहीं होता कि इसको छोड़ दूंगा कि उसको छोड़ दूंगा। मैं एज अ बिजनेसमैन ये आंसर दूंगा क्या कि मैं अच्छी डील छोड़ दूंगा या कंपनी छोड़ दूंगा? नहीं, मुझे दोनों को अगर संभालने का है तो मैं करूंगा क्या? ये देखिए दोस्तों, मैं करूंगा क्या? अगर 4 जनवरी को मुझे एक बिजनेस टेक ओवर करने के लिए आया है और मेरा पार्टनर कहता है कि मैं उसे कंपनी बना के टेक ओवर करूं, तो मुझे सिर्फ एक छोटा सा चीज करना पड़ेगा जिसको करने को सिर्फ 1 घंटा लगता है, जिसको करने को सिर्फ 1 घंटा लगता है। मैं एक कंपनी का नाम प्रपोज करूंगा, बीपीए एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं कंपनी का नाम प्रपोज करूंगा और उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना के, बेटा इसको बनाने को 1 घंटे के ऊपर नहीं लगता है, प्रोसीजर समझिए, इसको बनाने को 1 घंटे के ऊपर नहीं लगता। ये बना के, मेरी प्रॉब्लम कहां है? वो बंदा मुझे क्या बोल रहा है, विपुल तूने शाम तक पैसे दिए तो ठीक है वरना मैं धंधा किसी और को बेच दूंगा। तो मैं उसको क्या बोलता हूं, ठीक है मेरे पास शाम तक का टाइम है ना? हाँ सर आपके पास शाम तक का टाइम है, ठीक है तो बेटा 7 बजे के पहले अब मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मैं शाम को 7 बजे तुझे मिल लूंगा। बात खत्म हो गई। वो बंदा अब शाम को 7 बजे तक रुका हुआ है। अब मेरा पार्टनर ये बोल रहा है कि मुझे कंपनी बनानी है, तो मुझे मेरे पार्टनर को भी इंटरटेन करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या नाम से कंपनी बनानी है तेरे को? वो बोलेगा वीपी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम की कंपनी का नाम प्रपोज करके मैं 1 घंटे में कंपनी सेक्रेटरी के पास जाके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनवा के ऑनलाइन इसको अपलोड कर दूंगा आरओसी की वेबसाइट पे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट पे मैं अपने कंपनी फॉर्मेशन को अप्लाई कर दूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जस्ट से यस और नो। मुझे अगर आज एक कंपनी बनानी है तो मुझे 2 डॉक्यूमेंट बनाने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और इसको एक वेबसाइट पे अपलोड करने का है। ये करने को 1-2 घंटे के ऊपर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इसे कहते हैं प्रपोज कंपनी। अब मैंने जैसे ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, ये बन गई मेरी प्रपोज कंपनी। मतलब मेरा इंटेंशन अच्छा है, मैं इस देश का अच्छा नागरिक हूं, मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूं और मैंने इसे अपलोड कर दिया, तो मेरा लीगल प्रोसीजर चालू हो गया। अब प्रॉब्लम गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको 15 दिन लगने वाले हैं, मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही मैंने ये कंपनी प्रपोज की, जैसे ही मैंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल कर दिया, ये बात हो गई शाम के 4 बजे की। इसके अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भी पड़े हुए हैं। इसका मुझे एक्नॉलेजमेंट आरओसी की तरफ से आ गया है कि हाँ भाई हमको, आप जैसे आप सीए इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हो, आप सीए इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हो तो आपका पेमेंट हो गया, एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं, हमारे पास सबूत आ गया कि हमने सही काम किया है। अब सीए इंस्टीट्यूट 2 दिन बाद ईमेल भेजे कि 15 दिन बाद ईमेल भेजे हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर का, हमने पेमेंट कर दिया, मतलब हमारी तरफ से काम खत्म हो गया। अब इंस्टीट्यूट का काम है कि उसको क्या करना है। एग्जैक्टली इन द सेम वे, जैसे ही मैंने ये पेपर फाइल किए मेरी तरफ से काम खत्म हो गया, मेरे हिसाब से मैंने कंपनी फ्लोट कर दी। अब 15 दिन का टाइम आरओसी को लग रहा है, वो आरओसी का प्रॉब्लम है। शाम को 4 बजे मैंने अगर ये कंपनी के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो शाम को 7 बजे मैं वो जेडपीए एकेडमी को टेक ओवर कर लूंगा। मैं मतलब कौन? प्रपोज कंपनी ने इसको टेक ओवर कर लिया है।
आर यू गेटिंग इट? तो अब ये देखिए, अब ये टाइमलाइन को समझिए। दिस इज माय डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ बिजनेस, 4 जनवरी। ठीक है, प्लीज बात को सुनिए। 4 जनवरी को मैंने बिजनेस टेक ओवर किया, तो दिस इज द डेट ऑफ टेक ओवर। अब कंपनी बनने को 1 महीना लग गया लीगली, तो दिस इज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब लॉ के हिसाब से, आरओसी के हिसाब से 4 फरवरी को इनकॉर्पोरेशन हुआ। आपको 4-4 में कंफ्यूजन ना हो तो मैं 9 फेब कर देता हूं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट समझ लीजिए, इसके बाद आपको चैप्टर समझ गया। अब बोर्ड पे देखिए, 9 फरवरी, अच्छा मेरा ईयर एंड होता है 31 मार्च। दिस इज माय ईयर एंड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज्ड। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड द सिचुएशन। 4 जनवरी को मैंने कोई बिजनेस टेक ओवर किया है, करेक्ट? मेरे को कंपनी से लीगली सर्टिफिकेट मिल रहा है 9 फरवरी को। कितने दिन बाद? करीब 35 डेज बाद, बराबर। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने किसी का धंधा टेक ओवर कर लिया है, उसका महीने का टर्नओवर, आई रिपीट, उसके महीने का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए का है। जिस बिजनेस को आपने टेक ओवर किया है उसके महीने का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए का है, तो आप टेक ओवर करने के बाद, बोर्ड पे देखिए, ये पीरियड, ये कौन सा पीरियड है? कैन यू गेस इट? प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, दिस इज नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं इसे? प्री इनकॉर्पोरेशन। ये जो पीरियड है, क्या ये पीरियड में आप धंधा करना छोड़ दोगे? जिस कंपनी को मैंने टेक ओवर किया है, सॉरी, जिस एकेडमी को मैंने टेक ओवर किया है, उसका 1 महीने का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है, तो क्या मैं इनकॉर्पोरेशन का एक लीगल सर्टिफिकेट, एक कागज के पन्ने के लिए मैं 1 महीने उसका धंधा बंद रखूं और 1 करोड़ का नुकसान करूं? पॉसिबल ही नहीं है। तो कंपनीज एक्ट बोलती है कि तूने कंपनी को प्रमोट कर दिया ना, तूने एक बिजनेस टेक ओवर कर लिया ना, अब एक काम कर, वो बिजनेस को चलने भी दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पीरियड में जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, इससे कहते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। मतलब इनकॉर्पोरेशन के पहले हमने बिजनेस टेक ओवर भी कर लिया और वो बिजनेस चला के हमने प्रॉफिट भी कमा लिया, इससे कहते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये हुआ 40 मिनट्स का हार्डकोर लॉजिक। 10 बजे हमने क्लास चालू की थी, 10:40 आपको 40 मिनट से वे कंसेप्ट समझाने को लग गए कि ये कंसेप्ट है क्या, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो ये कंसेप्ट कब लगता है? ये कंसेप्ट तब लगता है जब एक नई कंपनी, आई रिपीट, वंस अ न्यू कंपनी टेक्स ओवर अ एग्जिस्टिंग बिजनेस। एक नई कंपनी है जिसे एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर करना है। मैं सब लिखवाऊंगा, आप ध्यान दीजिए, रेणुका ध्यान दो बेटा, राइट? तो मैं ये सब लिखवाऊंगा। तो ये सिचुएशन, ये चैप्टर, ये लॉ लगता ही कब है? जब एक न्यू कंपनी ने एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर किया। और एक चीज, अगर मुझे, देखिए आप में से सब लोगों को कुछ ना कुछ बिजनेस करना है लाइफ में, रोज के 4 आइडिया आपके दिमाग में आते हैं, बराबर। अब लेट्स अज्यूम दैट रेणुका को वहां पे मान के चलिए कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करना है। रेणुका को कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करना है, उसको नई कंपनी चालू करनी है, रेणुका कॉस्मेटिक्स कंपनी लिमिटेड। तो शी वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, यस, and does she want to take a existing business? No, she wants to start a new business. न्यू कंपनी को न्यू बिजनेस चालू करना है। आई रिपीट, दोनों में फर्क समझिए। ये देखिए, न्यू कंपनी, न्यू बिजनेस, न्यू कंपनी, एग्जिस्टिंग बिजनेस। न्यू कंपनी को न्यू बिजनेस चालू करना है तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद ही चालू कर सकती है। तो अब मैंने सबसे पहले आपको समझाया था, पहले डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा और उसी के बाद धंधा चालू होगा। मतलब दिस चैप्टर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, बोर्ड पे देखिए, ओनली व्हेन अ न्यू कंपनी टेक्स ओवर अ एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर न्यू कंपनी को, ये कौन सी बात है, मेरा केस है जहां वीपीए को जेडपीए को टेक ओवर करना था,
ये वो वाला केस है। पर रेणुका की बात करें, जो हमारी एक स्टूडेंट है, उसको नया कंपनी चालू करके नया बिजनेस कॉस्मेटिक का चालू करना है, तो ये चैप्टर अप्लीकेबल नहीं है। कंपनीज एक्ट क्या बोलती है, रेणुका बेटा जब तू इतने साल रुक गई ना बचपन से, तो 15 दिन बेटा और रुक जा, तेरे को इतनी क्या मची है नया बिजनेस एकदम से चालू करने की, तू आज कंपनी फ्लोट कर बेटा, 15 दिन में हम तेरे को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट और कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसके बाद तू बिजनेस चालू कर। मतलब फाइनल समरी क्या हुई, फाइनल समरी ये हुई that this chapter profit prior to incorporation is applicable only when a new company takes over an existing business. If a new company wants to start a new business, this concept is not applicable. यहां तक समझ में आया गाइस, यहां तक समझ में आया? जस्ट अनम्यूट योर, क्योंकि अब मैं ये पॉइंट्स आपको डिक्टेट करवाने वाला हूं, तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, इज द स्पीड ओके? स्लो लग रहा है थोड़ा? बेटा कंसेप्ट जब भी नए चैप्टर का मैं समझाता हूं, आपको पता है मैं बहुत स्लो ही समझाता हूं, क्योंकि इवन द एवरेज स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड, राइट? तो अब ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये सब अभी मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूं। एक फ्रेश रजिस्टर पे, फ्रेश पेज पे आके चैप्टर की हेडिंग दीजिए प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और ये पूरे पॉइंट्स मैं आपको लिखवा भी देता हूं, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। एंड देन वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, राइट? तो प्लीज ओपन योर रजिस्टर। अगर आपके पास अभी नया रजिस्टर नहीं है तो कृपया कोई पुराने रजिस्टर में लिख ले, बाद में घर पे कॉपी कर लीजिएगा। Please give the heading profit prior to incorporation. Should we start? We'll write it in the points form. We'll write it in the points form. For the last time beta, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये हेडिंग होनी चाहिए आपकी ऑन द स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, पॉइंट नंबर 1, राइट डाउन। मैं बोर्ड पे लिखते भी जाता हूं ताकि आपको कंफर्ट रहे। अ कंपनी, मैं बोलते भी जा रहा हूं, लिखते भी जा रहा हूं, आप सुन के लिखिए। अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी and is allocated two certificates by ROC. Two certificates by ROC. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में पॉइंट नंबर ए, आप स्क्रीन को भी देख सकते हैं। पॉइंट नंबर ए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पॉइंट नंबर बी, सर्टिफिकेट टू कमेंस द बिजनेस। एक और बात क्विकली रिपीट करते हैं, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, जिसमें पॉइंट नंबर ए और बी भी थे। अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड बेटा पहले दिन से हम डिसिप्लिन रख के प्लीज लिखेंगे, हम गड़बड़ नहीं करेंगे, ओके? अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी and is allocated two certificates by ROC. What is ROC? Registrar of Companies. किसी को लिखना हो तो वहां ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, ROC is registrar
रजिस्टर नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। नेक्स्ट लाइन में पॉइंट नंबर ए था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन में पॉइंट नंबर बी था सर्टिफिकेट टू कमेंस द बिजनेस। चलिए, तो एक कंपनी को आरओसी, एक लीगल एंटिटी है और आरओसी उसको दो सर्टिफिकेट देता है, इनकॉर्पोरेशन का और कमेंसमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सर्टिफिकेट टू कमेंस the business is usually at a date later, लेटर को इनसर्कल करिएगा, LATER, लेटर देन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेम पॉइंट, चेंज द पैराग्राफ। द अर्लीस्ट डेट to commence the business can be same as the date of incorporation। इसमें अर्लीस्ट वर्ड को इंसर्कल करिए और सेम वर्ड को इंसर्कल करिए। मैं एक बार फिर पॉइंट नंबर 2 रिपीट करता हूं। सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस is usually at a date later than the date of incorporation। यूजुअली कब होता है? पहले कंपनी चालू हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके बाद आप बिजनेस चालू कर सकते हो। पर अति हो गया देन द अर्लीस्ट डेट कैन बी सेम एज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 में ए और बी था, वो तो वहीं खत्म हो गया था। दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। नाउ पॉइंट नंबर 3। Point number 3, under no circumstances को इंसर्कल करेंगे आप। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, आई होप आपने समझ लिया होगा मैं क्या बोलने वाला हूं। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस द डेट टू कमेंस बिजनेस can be earlier than the date of incorporation। अर्लियर वर्ड को भी इंसर्कल करिएगा। Under no circumstances the date to commence business can be earlier than the date of incorporation। Right? Point number 4, therefore technically a company cannot conduct business prior to incorporation, and thus profit cannot be earned prior to incorporation। दोनों कैनॉट को इंसर्कल करिएगा।
फाइन। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 5, अ न्यू कंपनी। तो गाइज एक सेकेंड, ये पहले 4 पॉइंट्स में हमने क्या थीम लिखा? सी द होल आइडिया एट इंटरमीडिएट लेवल, आपको बताते भी जाता हूं मैं, द होल आइडिया एट इंटरमीडिएट लेवल इज दैट आज से 3 महीने बाद, 4 महीने, देखिए बेटा सिलेबस इतना ज्यादा है, मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, हम में से मैक्सिमम लोग बोथ ग्रुप देने वाले हैं। 8 सब्जेक्ट में इतना सिलेबस है कि आज तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ रहा है, पर इसके चांसेस बहुत कम है कि अगस्त महीने में ये लेक्चर आपको याद रहे। नवंबर में आपकी एग्जाम है, तो द होल आइडिया इज मैं इतना लिखवा दूंगा आपको रजिस्टर में कि जब भी आप 5-7 महीने के गैप के बाद भी ये चैप्टर पढ़े, तो पहले 10-15, ये हर चैप्टर में मैं करने वाला हूं, पहले 10-15 पॉइंट में आपको पूरे चैप्टर का समरी वापस अच्छे से समझ के रिकलेक्ट हो जाए कि अच्छा ये चैप्टर में ऐसा था। जैसे अभी पहले 4 पॉइंट में हमने क्या लिखा, एक कंपनी होती है, उसको 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, ये सर्टिफिकेट इसके बाद होता है, ये सर्टिफिकेट इसके पहले नहीं हो सकता, इसलिए प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वैसे तो पॉसिबल है ही नहीं। अब पॉइंट नंबर 5 हम क्या लिख रहे हैं? अ न्यू कंपनी, स्टार्ट राइटिंग, अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, a new company is formed for either of two purposes. A new company is formed for either of the two purposes. अब एक छोटा सा, एकदम छोटा सा है, हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे with 2 arrows. To start new business, to take over an existing business. जैसा मैंने कहा, नई कंपनी क्यों बन सकती है? आपको याद होगा, बीपीए क्यों बना रही है न्यू कंपनी? क्योंकि उसे एक एग्जिस्टिंग जेडपीए एकेडमी को खरीदना है। और रेणुका न्यू कंपनी क्यों बना रही थी? क्योंकि उसको न्यू बिजनेस चालू करना था। तो न्यू बिजनेस चालू करने के लिए भी न्यू कंपनी बनती है, और एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए भी न्यू कंपनी बनती है। ये फ्लो चार्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है डाउन एरो करके, बोर्ड पे देखिए ना, इधर देखिए, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, कृपया गर्दन हिला के मुझे बताइए, लेफ्ट साइड में प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन लेफ्ट साइड में पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल? नो। राइट डाउन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज नॉट पॉसिबल, और नॉट पॉसिबल को हम इनसर्कल करेंगे, इज नॉट पॉसिबल। और राइट साइड में प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज पॉसिबल, इस पॉसिबल को आप इनसर्कल करेंगे। तो इतना पढ़ के ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है 5 महीने बाद भी कि ये चैप्टर कब अप्लीकेबल है और ये चैप्टर कब अप्लीकेबल नहीं है। इज दैट फाइन? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, therefore the concept of PPTI therefore the concept of PPTI is, उसके ब्रैकेट में लिख दो आप, ताकि अब चैप्टर में हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, PPTI, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन।
Therefore, बोर्ड पे देखिए, the concept of PPTI, फाइनल हमारा कंक्लूजन, therefore the profit concept of PPTI कब एप्लीकेबल है, is applicable only when को इंसर्कल कर लिए, only when a new company is formed to take over existing business. ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम में से काफी लोगों के मन में आ रहा होगा, चलो सर कंसेप्ट समझ गया, पर ये चैप्टर का लॉ में अहमियत ही क्या है, समझ गया सर, कंसेप्ट समझ गया, बट देन व्हाई डज कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली डील विद दिस टॉपिक, इज बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट रीजन। अब आपको समझेगा कि इसका बेसिकली ये कंसेप्ट को डील करने का लॉजिक कंपनीज एक्ट में क्या था। पॉइंट नंबर 7, द प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन the profit prior to incorporation, underline this, earned by the company is not available, not available को इंसर्कल करिएगा, is not available for distribution of dividends to shareholders. मतलब चलो भाई सब मंजूर है, सब मंजूर है, एक एकेडमी आई, उसको बेचना है, उसको स्ट्रेस सेल करना है, आपको खरीदना है, आपने कंपनी अप्लाई की, आरओसी को टाइम लगा, जब तक टाइम लगा तब तक आप धंधा नहीं रोक सकते, सब लागू है, हमने आपको सब अलाउ कर दिया एज लॉ ऑफ इंडिया, बट एक चीज हम अलाउ नहीं करेंगे, कौन सी, याद है, ये देखिए यहां बोर्ड पे देखिए, ड्रॉ नहीं करना है आपको, यहां मैंने टेक ओवर किया, यहां मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट का लीगल लाइसेंस मिला, तो बोर्ड पे देखिए, क्या मैं यहां बिजनेस कर सकता हूं, ये आप कर सकते हो, इस प्रॉफिट को क्या कहेंगे, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, क्या मैं ये कमा सकता हूं, बिल्कुल कमा सकता हूं एज अ कंपनी, बट इस पे एक ही रिस्ट्रिक्शन है, ये जो प्रॉफिट मैंने कमाया है इससे मैं डिविडेंड नहीं बांट सकता, ये प्रॉफिट से मैं एसेट खरीद सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर मैं अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं बांट सकता, डिविडेंड उसी प्रॉफिट से बटेगा जो इनकॉर्पोरेशन के बाद कमाया गया है, ये सबसे बड़ा लीगल पॉइंट है कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कंपनी कमा तो सकती है पर अपने शेयर होल्डर को बांट नहीं सकती। नेक्स्ट पॉइंट, एक टाइमलाइन बनाएंगे हम लोग, तो इस चैप्टर में 3 डेट्स इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे देखेंगे, देयर आर 3 डेट्स दैट आर इंपॉर्टेंट, 1 मिनट बोर्ड पे पहले देख लो, बाद में ड्रॉ करना, और हर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी 3 ही डेट्स इंपॉर्टेंट रहेगी, और वो तीनों दी रहेगी आपको, डेट ऑफ टेक ओवर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जिसको आप ईयर एंड बोल सकते हैं, ये 3 डेट दी रहेगी आपको, दिस इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, एज द नेम सेज इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, इसमें आप और देख लो एक बार फिर आप बना लेना, इसमें आप और एक डाउन एरो करके लिखोगे कि ये जो प्रॉफिट अगर हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, हम लॉस भी कमा सकते हैं, अगर ये हमने प्रॉफिट कमाया है
तो इट इज क्रेडिटेड टू, आपको याद होगा कंपनीज में, प्लीज सुनिए, आपको याद होगा कंपनीज में प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है क्या? 11 स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स में जब आप प्रोप्राइटर में डील करते थे तो फटाक से नेट प्रॉफिट आप बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे। 12th में जब आप आए और पार्टनरशिप आया, अच्छा आपने 11 12 साइंस किया तो फाउंडेशन में भी ये चैप्टर आपने पढ़े, फाउंडेशन तो सबने किया है ना कि सीधा बीएससी करके आए हो यहाँ पे, बराबर। तो प्रोप्राइटर कंसर्न में नेट प्रॉफिट सीधा कैपिटल में ऐड हो जाता था। पार्टनरशिप फर्म में नेट प्रॉफिट 2-3 पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऐड होता था। कंपनी में क्या प्रॉफिट शेयर कैपिटल में ऐड होता है क्या? नहीं होता है। कंपनी में प्रॉफिट शेयर कैपिटल में ऐड नहीं होता, अलग से रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखता है। क्यों दिखता है याद है? नहीं हो तो 5 मिनट बाद बताता हूं। अलग से रिजर्व सरप्लस में दिखता है, तो जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है इट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व में इसीलिए डालते हैं क्योंकि फिर कैपिटल रिजर्व से आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, इसीलिए कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, नहीं तो हम जनरल रिजर्व में डाल देते हैं और जनरल रिजर्व से हम डिविडेंड बांट सकते हैं। सर ये कहां से समझता है? ये आपको जब मैं कंपनी फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको समझेगा। तो कैपिटल रिजर्व में डाल दिया मतलब डिविडेंड नहीं बढ़ सकता। हाउएवर ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉस हो जाए, जरूरी थोड़ी ना है प्रॉफिट ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉस हो जाए। तो लॉस अगर हुआ तो इट इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। सर गुडविल, यस, इसका थोड़ा सा हिंट मैं आपको ऐसा दे सकता हूं, सीए फाउंडेशन में जब शेयर्स चैप्टर हम कर रहे थे, शेयर्स चैप्टर में इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वहां पे याद है जब हम किसी का एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदते थे, सस्ते में खरीदते थे तो कैपिटल रिजर्व में जाता था, महंगे में खरीदते थे तो गुडविल में जाता था। वही लॉजिक है, आगे जब हम अमालगमेशन चैप्टर करेंगे तब आपको ये समझेगा, राइट। तो अगर प्रायर इनकॉर्पोरेशन है तो इट्स क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व एंड लॉस है तो इट इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। चलिए ये आपको ड्रॉ करना है ऑल ऑफ यू। वही नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये टाइमलाइन करके प्लीज ड्रॉ करिए। थोड़ा फास्ट। लास्ट 1 मिनट। तो गाइस अब हो गया सबका? गिव मी अ थम्स अप प्लीज, ऑल ऑफ यू। ग्रेट। नाउ गाइस, तो एक बात तो पक्की हो गई कि हमें प्रॉफिट को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, करेक्ट। तो सीधी सीधी बात है, प्री इनकॉर्पोरेशन के इनकम एक्सपेंस अलग रखने पड़ेंगे और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के इनकम एक्सपेंस अलग रखने पड़ेंगे, ओनली फॉर वन रीजन कि ये जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है इससे हम डिविडेंड बांट नहीं सकते, इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर, नेक्स्ट पॉइंट चालू ही देयरफॉर से होगा। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, राइट डाउन, देयरफॉर द इनकम एंड एक्सपेंस
therefore the income and expense of the company in first year shall be divided into two parts. A. Pre-incorporation. B. Post-incorporation. तो इस वजह से द क्यू फैक्टर, द वाई फैक्टर, इस वजह से हमको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा. अच्छा, अब बांटे कैसे? चलो बांटना पड़े, मतलब आप देख रहे हो स्टेप्स कैसी चल रही है. पहले तो चैप्टर क्यू बना, लॉ का क्या स्टेटमेंट था. अब क्यू बना, किस लिए बना, अब बन गया, अब उसको दो हिस्सों में बांटना है. पर बांटे कैसे? बांटना ये भी समझ गया. हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूटेड? चेंज द पैरा, सेम पॉइंट, चेंज द पैरा. मतलब ए और बी हो गया, उसके बाद पॉइंट वही है. हाँ, फॉर डिवाइडिंग income and expense into above mentioned two periods, comma, we generally use two ratios. We generally use two ratios. Sales ratio, time ratio. Sales ratio, time ratio. तो भाई प्री इनकॉर्पोरेशन है, पोस्ट है, डिवाइड करना है, तो कैसे करें? तो दो रेशियो में हम डिवाइड करेंगे, टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो. व्हाट डू यू मीन बाय टाइम रेशियो एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स रेशियो? तो उसको हम प्रेजेंट करेंगे. लास्ट 2 पॉइंट्स गाइस, लास्ट 2 पॉइंट्स, इसको देखिए. तो अभी तक आपको समझ गया, 3 डेट्स इंपॉर्टेंट है बराबर. डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सर ये अभी तो बनाया था, वापस बनाना है. एंड ऑफ पीरियड, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब क्लोज हो रही है. ठीक है. अब ये देखिए, मान के चलिए कि ये इस पीरियड को कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन, इस पीरियड को कहते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. ठीक है. अब मान के चलिए कि इस पीरियड का जो सेल्स है, एक सेकेंड, हाँ, इस पीरियड का सेल्स इज एक्स, इस पीरियड का सेल्स इज वाई, इस पीरियड का टाइम इज ए, टाइम मतलब मंथ्स, इस पीरियड का टाइम इज बी. तो कॉमन सेंस की बात है, हमें प्री और पोस्ट में बांटना है, प्री और पोस्ट में बांटना है. तो दोस्तों माय टाइम रेशियो इज गोइंग टू बी ए. ये हर क्वेश्चन में आपको ये छोटा सा रेशियो निकालना है. इट्स नॉट अ हेवी मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड 7 स्टूडेंट कैन ऑल्सो डू इट. टाइम रेशियो is A is to B, sales ratio is X is to Y. ये दोनों रेशियो आपको हर क्वेश्चन में निकालने पड़ेंगे. एंड ओनली 3 डेट्स आर इंपॉर्टेंट. जिस दिन हमने बिजनेस को टेक ओवर किया, जिस दिन लीगली हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, और जिस दिन हमारे बुक्स बंद हो रहे हैं. ये 3 डेट्स को हमें 2 पीरियड में बांटना है, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. देखो बोर्ड पे देखो, ये प्री इनकॉर्पोरेशन है, ये पोस्ट है. इन दोनों के सेल्स को कंपेयर करेंगे तो हमारा सेल्स रेशियो आ जाएगा. जैसे मान सकते हैं इनकॉर्पोरेशन के पहले का सेल है 1 करोड़ और इनकॉर्पोरेशन के बाद का सेल है 5 करोड़, तो रेशियो हो गया 1:5. और इनकॉर्पोरेशन के पहले 4 महीने हैं और इनकॉर्पोरेशन के बाद में 8 महीने हैं, तो टाइम रेशियो हो गया 1:2.
तो टाइम रेशियो इज 1:2, सेल रेशियो इज 1:5। इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमको सपना कहां से आएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। पर आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैं ऐसे टाइमलाइन में आपको करवा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन का स्कोप ही ना रहे। प्लीज ड्रॉ दिस, प्लीज ड्रॉ दिस। प्लीज अच्छे से ड्रॉ करिए और जैसा मैंने लिखा है पूरा लिखिए। नाउ बाय एंड लार्ज आपको अब तक ये समझने लग गया होगा कि ये दो रेशियो क्यों है। हम ये रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इनकम और एक्सपेंस को बांटना है। एक्सपेंस और इनकम को क्यों, अब रिवर्स चलते हैं, रिवर्स चलते हैं। हम ये रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें, प्लीज सुनिए लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द क्लास। तो हम ये रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इनकम और एक्सपेंस को बांटना है। वंडरफुल। अब इनकम और एक्सपेंस को क्यों बांटना है, सॉरी कैसे बांटना है, तो दो रेशियो में बांट सकते हैं, टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो। जैसे रेंट है, जैसे रेंट है, रेंट नाम का एक एक्सपेंस है। आपको क्या लगता है रेंट का सेल्स से कोई लेना देना है? नहीं, तो हम रेंट को टाइम रेशियो में बांटेंगे। सैलरी टाइम रेशियो में बांटेंगे। इलेक्ट्रिसिटी टाइम रेशियो में बांटेंगे। पर सेल्समैन का कमीशन, क्या उसका टाइम से कोई लेना देना है कि सेल से लेना देना है? सेल से, तो सेल रेशियो। एडवर्टीजमेंट सेल रेशियो। मतलब बेसिकली इस चैप्टर में हमको एक कॉमन पीएनएल दिया रहेगा। ये देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये आपका एक टिपिकल क्वेश्चन है जो हम चालू करने वाले हैं। ये देखो, एक ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आपको दिया रहेगा। बस आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस को दो हिस्सों में बांटना है, प्री एंड पोस्ट। इतना आसान चैप्टर है 8 मार्क के लिए, प्रोवाइडेड ये 1.5 आवर का लॉजिक हमको अच्छे से समझ। तो अब एक्सपेंसेस को आपको दो हिस्सों में बांटना है, प्री और पोस्ट। तो लॉजिकली दो ही तरीके से बांट सकते हैं। हमको लगता है ये एक्सपेंस हर महीने हमको करना ही पड़ता है, लाइक रेंट, लाइक सैलरी, तो हम वो टाइम रेशियो में बांट देंगे। पर हमको लगता है ये एक्सपेंसेस सेल्स के बदौलत होते हैं, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन्स कमीशन, तो वो हम सेल्स रेशियो में बांट देंगे। मतलब इस चैप्टर में अगर मैं समरी बोलूं तो क्वेश्चन आपको चालू कैसे करना है, आपको दो रेशियो निकालने हैं, ये जो अभी आपको बताया, टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो। कुछ खर्चे को आपको टाइम रेशियो में बांटना है, कुछ खर्चों को आपको सेल्स रेशियो में बांटना है, स्ट्रिक्टली अप्लाइंग योर कॉमन सेंस। तो इस चैप्टर में हमें इनकम और एक्सपेंस को दो हिस्सों में बांटना है। क्यों बांटना है, क्योंकि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं मिल सकता, इसलिए हमें प्री और पोस्ट में बांटना है। और अब आप रिवर्स जाएंगे तो आपको चैप्टर के पूरे लॉजिक समझेंगे। प्री और पोस्ट में बांट क्यों रहा है, क्योंकि एक नई कंपनी बन रही है। नई कंपनी क्यों बन सकती है, नए धंधे के लिए और एग्जिस्टिंग धंधा टेक ओवर करने के लिए। नई कंपनी नए धंधे को चालू करे तो ये चैप्टर अप्लीकेबल ही नहीं है। ये चैप्टर तब अप्लीकेबल है जब एक नई कंपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर। यस, ये पूरा लॉजिक इस तरीके से आपका बैठता है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फुल चैप्टर इन अराउंड 75 मिनट। इतना जब तक इंटरमीडिएट लेवल पे हम ना सुने, हमको चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, क्योंकि दैट क्यू फैक्टर, दैट वाई फैक्टर हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन करें। ओ हेलो, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। अरे एक छोटा सा शगुन का क्वेश्चन करे पहले दिन। मुझे आज भी याद है, नहीं आप में से काफी लोग ऐसा, पहला दिन है सर, सुबह 8 बजे से क्लासेस कर रहे हैं सर,
दिमाग ने जवाब दे दिया है, दिमाग की क्षमता खत्म हो गई है, दिमाग बोलता है बस कर पगले, अब कितना रुलाएगा। यस, ऐसा बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। यस, चलिए आपको सिर्फ एक, ठीक है हम क्वेश्चन चालू नहीं करते हैं, हम 2 मिनट में मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि कैसे करना है, फिर हम कल चालू करेंगे। ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 मिनट सिर्फ समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं, करेंगे नहीं, समझ लेते हैं, ताकि आपको अभी तक कैसा है, थेरी थेरी समझी ना, एक बार देख लेते हैं। रीगल लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई, तो इनकॉर्पोरेशन की डेट है। इट ऑल्सो गेट कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑन 1 जुलाई, इसका कोई काम नहीं है, ये देखो बोर्ड पे, ये कंफ्यूज करने के लिए कि हम किस दिन बिजनेस कमेंस करेंगे। चैप्टर का नाम ही क्या है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, तो यहाँ डेट कौन सी इंपॉर्टेंट है, इनकॉर्पोरेशन की। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट का कोई काम नहीं। हमने बिजनेस 1 जनवरी से टेक ओवर किया और पीएनएल 2019 का है, मतलब अगर मैं टाइमलाइन पे बात करूं तो मैंने 1 जनवरी को बिजनेस टेक ओवर किया, 1 मई को मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है। वही 3 डेट्स जो मैंने आपको कही थी, करेक्ट। अब आप खुद देख लो, यहां अगर आप टाइम रेशियो निकालते हो तो ये 4:8 है टाइम रेशियो, 4 महीने इस टू 8 महीने। और सर हम सेल्स रेशियो कैसे निकालेंगे, ये देखिए क्वेश्चन में दिया ही है, सेल्स अप टू 1 मई 15 लाख, सेल्स आफ्टर 1 मई 60 लाख, तो आपका टाइम रेशियो हो गया 4:, आपको लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि चैप्टर कितना आसान हो जाता है अगर हम एक बार पढ़ ले तो। ये 3 डेट्स, लास्ट 2 मिनट्स, ये 3 डेट्स दी हुई है आपको, ये 3 डेट्स दी हुई है, यहां का टाइम पीरियड है 4 महीने, यहां का टाइम पीरियड है 8 महीने, तो मेरा टाइम रेशियो हो गया, बोर्ड पे देखिए, मेरा टाइम रेशियो हो गया 1:2। ठीक है, डेट्स तो वही है। अब ये डेट के पहले सेल्स है 15 लाख और बाद में है 60 लाख, तो मेरा सेल्स रेशियो हो गया 15:60, दैट इज 1:4। मेरा टाइम रेशियो आ गया, मेरा सेल्स रेशियो आ गया। अब आप किसी भी 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी ये क्वेश्चन देंगे, उसको क्या करना है, ये देखिए, ये खर्चे लाइन से दिए, सैलरी, कॉमन सेंस से बताओ, कम ऑन ऑल ऑफ यू, कौन सा रेशियो, गाइस 2 ही रेशियो है, बांटना है हमें, सेल या टाइम, टाइम रेशियो, जनरल एक्सपेंस टाइम रेशियो, कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज है सेल्स रेशियो, रिक्शा भाड़ा, माल बिकेगा तो ही जाएगा ना, एडवर्टीजमेंट सेल्स रेशियो, जम रहा है। बस ऐसे ही कॉमन सेंस लगा के आपको 2 पीएनएल बनाने हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और आपको 8 में से 8 मार्क मिल जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? ऑब्वियसली, अब इससे आगे मैंने किया तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, तो ये हम कल करने वाले, तो डोंट वरी अबाउट इट, राइट गाइस। अब भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, ठीक है, मीटिंग छोड़ने से पहले 5 मिनट रुक जाए, किसी को कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 टुमारो।